जिसका So now if two electrons which interchange their position, अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्टेंट अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, पहले इसकी पोजीशन थी psi1 और psi2, एक इलेक्ट्रॉन r1 पे था और दूसरा इलेक्ट्रॉन r2 पोजीशन पे था। जब हमने इंटरचेंज किया तो जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो r2 पे आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन r1 पोजीशन पे आ गया, तो उसका जो टोटल वेव फंक्शन ये हो गया। अब इंटरचेंज करने के बाद अगर वेव फंक्शन सेम रहता है तो we call it as a even parity function and we call it as a symmetric wave function। लेकिन अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं r1 r2 से r2 r1, if we change the position and the wave function becomes negative, we call it as a odd parity function and this function is known as anti-symmetric wave function। So now here if we say that the symmetric wave function psi can be written as 1/2 psi r1 r2 plus psi r2 r1. This is the wave function before interchange and this is the wave function after interchange. This is the total symmetric wave function. This 1/2 which is the factor which we call it as a normalization factor. आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ के आए हो कि जब भी किसी वेव फंक्शन का आप मॉड लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो एज अ रिजल्टेंट जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है जिसको आप कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो दिस 1/2 टर्म इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन दिस इज द वेव फंक्शन बिफोर इंटरचेंज and this is the wave function after interchanging, so this is added. For the anti-symmetric wave function, this is the subtraction. The only difference is the second wave function is subtracted from the first wave function. So now we have to look at the combination here. If we say that the first electron, अगर हम कह देते हैं first electron position r1 पे था जिसका wave function psi a है, सेकंड इलेक्ट्रॉन पोजीशन r2 पे है उसका वेव फंक्शन भी psi a है। अब अगर दोनों का वेव फंक्शन सेम है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो पोजीशन r1 पे है और उसका वेव फंक्शन जो है psi a है, दूसरा जो है वो पोजीशन r2 पे है और उसका वेव फंक्शन rb था। इसका मतलब है कि स्टेट फंक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन वाज डिफरेंट। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट पे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, which we call it as a psi a and दूसरे का भी psi a. The position is r1 r2. तो इस केस में इसका वेव फंक्शन क्या होगा, psi of r1 r2 is equal to psi a of r1 psi a of r2. सिमिलरली अगर आप इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो आप कहेंगे psi r2 into r1 is equal to psi a r2 psi a r1, because if we change the position just from r1 to r2 r2 to r1, these are the indistinguishable particles, so if we interchange the position you cannot distinguish it. अब अगर यहाँ पे इनकी वैल्यूज में डाल देता हूं इक्वेशन में फॉर द सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये यहाँ पे अब ये देखें कि ये हमारे पास वेव फंक्शन है psi a psi a psi a psi a। अब अगर इसकी वैल्यूज यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन में,
तो आप ये देखोगे कि दो टोटल सिमेट्रिक फंक्शन है, दिस फंक्शन is same as this function if the position is same, so this will be added. So the symmetric wave function gives you the some constant value here. The symmetric wave function, when these add up, it gives you a certain value and a certain constant. So this whole quantity will give you the certain constant value. But if the anti-symmetric wave function here, so as a resultant for the anti-symmetric wave function, this is and this both are the same. If the position, if the state function of the one of the electron is psi a, the state function of the second of the electron is psi a. Both are same. Here is a minus, so they will subtract each other. So the resultant is 0. So now if we look here, the symmetric wave function which is to be added gives you a certain value, and the anti-symmetric wave function which gives you the 0. Because if the state of both electron is the same, that's why we are saying that no four quantum numbers of any two electron can be the same. यहाँ पे अगर आप ये देखें, according to the Pauli-Exclusion principle, हमने कहा the first electron is in the 1s1 and its state is this, means n is equal to 1, L is equal to 0, ML is equal to 0, spin is 1 off. The state is 3s1 by 2. The second electron is n is equal to 2. This is possible. But in the case of here, if both electron is in the n is equal to 1 here, the first electron is in n is equal to 1 and the second electron is n is equal to 1. So the term value is 3s1 by 2 in the helium atom, because the configuration of helium atom is 1s2. अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में है, उसका जो स्टेट फंक्शन है वो psi ऑफ a है. दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, वो भी s ऑर्बिटल में है, उसका भी मैं कह देता हूं कि स्टेट फंक्शन psi ऑफ a है. तो दोनों का स्टेट फंक्शन सेम होगा. इसका मतलब है कि स्टेट फंक्शन का स्पिन भी सेम होगा. तो हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज द एंटीसिमेट्रिक, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसी तरीके से हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा. अगर एक का स्टेट फंक्शन का वेव फंक्शन psi ऑफ a है तो दूसरे का psi ऑफ b होगा. दोनों का सेम नहीं हो सकता. And if it is the same, it violates the Pauli-Exclusion principle. So therefore, which violates the Pauli-Exclusion principle, that state is not possible. What we have discussed here. अब आते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको क्या देती है स्पिन. अब क्वांटम मैकेनिक्स में आप कह देते हैं दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, एक होता है बोसॉन्स, दूसरा होता है फर्मियंस. बोसॉन्स के लिए जो है वो वेव फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, और फर्मियंस के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है. बोसॉन्स जो है वो पॉली-एक्सिलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, और फर्मियंस जो है वो पॉली-एक्सिलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स जो है, जिनका स्पिन 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है एंड एक्सेट्रा, these are known as a fermions, and the fermions follows the Pauli-Exclusion principle, and their wave function must be anti-symmetric on the exchange. जब आप उनको एक्सचेंज कर देते हैं, the wave function must be anti-symmetric. बोसॉन्स जो होते हैं, which is like a photon, photon का wave function here, बोसॉन्स is the photon, जिनका wave function जो है वो symmetric होता है. और बोसॉन्स जो है वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्मियंस जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फर्मियंस, वो फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, पैरिटी की अगर हम बात कर देता हूँ, यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि पैरिटी क्या है. पैरिटी ऑफ द वेव फंक्शन. यहाँ पे अगर आप ये देखें कि एक वेव फंक्शन है
जिसकी पोजीशन आपको बता देती है एक्स वाई जेड। जब आप उस पर पैरिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। दिस पैरिटी ऑपरेटर इज द ऑपरेटर which gives the reflection of that wave function and that reflection is known as the mirror reflection। कि अगर एक वेव फंक्शन है उसका मिरर इमेज देख रहे हैं आप, अगर उसका मिरर इमेज सेम है जैसा कि ओरिजिनल वेव फंक्शन था तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और अगर वेव फंक्शन चेंज हो जाता है बाय 180 डिग्री तो हम उसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। क्लियर? और आप देख लेते हैं कि किसी भी वेव फंक्शन को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक देखने के लिए हम उस पर कोई ऑपरेशन कर देते हैं। जैसे आप पढ़ के आए हो क्वांटम मैकेनिक्स में कि किसी भी स्टेट का आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो यू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ऑन अ वेव फंक्शन, it gives you a certain value and that value is known as an eigenvalue and that eigenvalue gives the value of that operator into the state function and state function is known as an eigenstate function। Similarly, ये कोई भी state है xyz, if we apply a parity operator on this state, if the state changes by 180 degree, it means x changes by minus x, y changes by minus y, z changes by minus z। So as a resultant, this wave function is known as anti-symmetric wave function। If the wave function remains same, if it does not change, then this is known as a symmetric wave function। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अगर आप x को चेंज कर देते हैं, x इज चेंज बाय माइनस एक्स, जब आप इसको माइनस एक्स कर देते हैं तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा आपका, the x is changed by minus x here। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है ऑफ द स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ये हमारे पास एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जिसकी साइज है माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू। ये आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ के आए हो। अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, इस बीच वाली लाइन को, ये एक वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, इज इन द ग्राउंड स्टेट। अब अगर इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ, इस पॉइंट को जहां पे एरो है, तो यहाँ पे इसके इस तरफ वाला वेव फंक्शन और इस तरफ वाला वेव फंक्शन क्या है, सेम है। तो ये साई ऑफ एक्स हो जाएगा, ये साई ऑफ माइनस एक्स। अब आप ये अगर इसका मिरर इमेज देखें तो दोनों बराबर है या डिफरेंट है? आप ये देखेंगे कि दोनों इमेजेस बराबर है। द वेव फंक्शन ऑन दिस साइड is the same as the wave function on this side, so this wave function is known as a symmetric wave function। So we call it as a psi of a, psi of x is equal to psi of minus x, so this is known as a symmetric wave function। Similarly, ये हम कह देते हैं, फर्ज कर लें ये wave function है which is the wave function in the first excited state। अब यहाँ पे ये psi of ये 0 है, this is center, सेंटर के इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और सेंटर के इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, मैं कह देता हूँ ये साई ऑफ एक्स है, यहाँ पे वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स है। इसका अगर आप मिरर इमेज देखें तो वो ये है, दिस इज साई ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये जो है आपका ट्रफ है, यहाँ पे ये आपका क्रस्ट है। द वेव फंक्शन इज चेंज बाय 180 डिग्री, द एक्स बिकम्स माइनस एक्स। अब इसका मिरर इमेज वो एज इट इज नहीं रहा, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो एज अ रिजल्टेंट वेव फंक्शन इज चेंज बाय 180 डिग्री, सो देयरफॉर दिस वेव फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन एंड दिस वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं इस पे, यहाँ पे अगर आप ये देखें, दिस इज द वेव फंक्शन एट n इज इक्वल टू 2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। हम कह देते हैं कि ये फर्ज कर लें ये आपका सेंटर है, यहां से वेव फंक्शन आप ये देते हैं दिस इज साई ऑफ एक्स रेट से। अब इस साई ऑफ एक्स और ये आपके पास साई ऑफ एक्स है माइनस एक्स। अगर आप ये देखें कि इसका मिरर इमेज सेम है फ्रॉम दिस सेंटर, आप ये देखें दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक वेव फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द इवन पैरिटी वेव फंक्शन, because if you apply a parity operator on the wave function becomes same, remains same, it does not change. So as a resultant the wave function is same, we call it as a even parity wave function, we call it as a symmetric wave function। Similarly, यहाँ पे अगर आप ये देखें तो this is anti-symmetric wave function।
अब यहाँ पे सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की अगर आप देखें कि ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन है, which we call it as a symmetric wave function. अब यहाँ पे इनकी जो टोटल अगर प्रोबेबिलिटी आप देखें तो अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है जब टोटल स्पिन 0 होता है, और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कब होता है? जब टोटल स्पिन 1 होता है। अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के करीब ज्यादा टाइम गुजारते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग क्लोज टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जब आप एक्सचेंज करते हैं और हम कह देते हैं इनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑफ टाइम ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन क्लोज टू ईच अदर इज मैक्सिमम। उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एक दूसरे के करीब रहने की, और एंटी सिमेट्रिक में उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, एक दूसरे से दूर होते हैं, लाइक दैट। दिस इज वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द अदर इलेक्ट्रॉन, सो एज अ रिजल्टेंट द टोटल वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि व्हाट इज द सिमेट्रिक, व्हाट इज द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब आते हैं हम LS coupling of the carbon. So in the LS coupling of the carbon here, तो यहाँ पे हमने देखा कि what is the symmetric wave function and what is the anti-symmetric wave function. Simply अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने कहा कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन पोजीशन R1 पे है, दूसरे की पोजीशन R2 पे है। एक का स्टेट फंक्शन साई ऑफ ए है, दूसरे का स्टेट फंक्शन साई ऑफ बी है। अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं इस तरह से, तो अगर हम इनको इंटरचेंज करने के बाद अगर इनका टोटल वेव फंक्शन सेम रहता है, if the total wave function does not change, we call that wave function is a symmetric wave function. लेकिन अगर total wave function change हो जाता है by 180 degree, if the reflection or mirror image of the wave function is changed by 180 degree, the x becomes minus x, then the wave function is anti-symmetric. And the fermions, which is the electron, proton and neutron, these are called fermions, its spin is 1/2, 3/2 and etc. They follow the Pauli exclusion principle rules. And other particles like a boson, boson is a photon, photon does not follow the Pauli exclusion principle, and the photons or bosons are the symmetric wave function. So as a general, for the electrons, the total wave function must be anti-symmetric.